নৱ গগৈ দেশৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্দৰ্ভত এবাৰ সৰব হৈছে বিৰোধী দলপতি সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰ লোকো পাইলটৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে। লোকো পাইলটক সাক্ষাৎ কৰি এবাৰ সদনত লোকো পাইলটৰ যি সমস্যা আছে, দীৰ্ঘদিনে ভুক্তভোগী হৈ অহা লোকো পাইলটৰ যিসমূহ সমস্যা, এই সমূহৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া সদনত বিষয়টো উপস্থাপন কৰিম বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। আৰু লগতে লোকো পাইলটৰ যি অধিকাৰ, লগতে কৰ্ম পৰিস্থিতি উন্নত কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে এতিয়া চৰকাৰক বিৰোধী দলপতি সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। লোকো পাইলটৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰ লোকো পাইলটৰ সমস্যা বুজ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। লোকো পাইলটৰ বিষয়ে সদনত আলোচনা কৰাৰ আশ্বাস দিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু মোদীৰ চৰকাৰৰ দিনতে লোকো পাইলটে কষ্টৰে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু গৰমত উতলি থকা কেবিনেটত বহি 16 ঘণ্টাকৈ কাম কৰিছে লোকো পাইলটে। যাৰ ওপৰত কোটি কোটি জীৱন নিৰ্ভৰশীল, তেওঁলোকৰ কোনো গুৰুত্ব নাই নেকি বুলিও প্ৰশ্ন এতিয়া কংগ্ৰেছৰ বা বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ। আনকি প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ দৰে মৌলিক সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে লোকো পাইলটসকল। আৰু কৰ্ম সময়ৰ কোনো সীমা নাই, আৰু নিজ পৰিয়ালৰ বাবে তেখেতসকলে ছুটিও লাভ নকৰে বা ছুটিও নাপায়, যাৰ বাবে কোনো শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে। লোকো পাইলটসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগি পৰাৰ অভিযোগ। আৰু এনে পৰিস্থিতিত তেওঁলোকে যেতিয়া ৰেল চলায়, ৰেল চলোৱা মানেই যাত্ৰীৰ জীৱন বিপদৰ দিশে লৈ যোৱা। লোকো পাইলটৰ অধিকাৰ আৰু পৰিস্থিতি উন্নত কৰাৰ বাবে সংসদত প্ৰশ্ন কৰা হ'ব বুলিও এতিয়া উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। লোকো পাইলটক সাক্ষাৎ কৰি সৰব হৈছে এনেদৰে এতিয়া সাংসদ ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত এনেদৰে শেহতীয়াভাৱে মাত মতা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এবাৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকো পাইলট যিসকলে ৰেল চলায় তেখেতসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে। তেখেতসকলক সাক্ষাৎ কৰি লোকো পাইলটে যিসমূহ সমস্যা ভুগি আহিছে, যিসমূহ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে, আৰু সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সদনত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু লোকো পাইলটে যিসমূহ মৌলিক অধিকাৰ পাব লাগে বা কৰ্ম পৰিস্থিতি তেখেতসকলৰ উন্নত কৰিব লাগে, তেখেতসকলে যিসমূহ ছুটি লাভ কৰিব লাগে সেইসমূহ যাতে তেখেতসকলক প্ৰদান কৰা হয় ইত্যাদি, এইসমূহ সকলো দিশ আলোচনা কৰি সাক্ষাৎ কৰি আলোচনা কৰি এতিয়া এইসমূহৰ সন্দৰ্ভত সদনত আলোচনা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। আৰু কেৱল ইমানেই নহয়, চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিছে, মোদী চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰি কৈছে যে মোদী চৰকাৰৰ দিনত লোকো পাইলটসকলে অশেষ কষ্টৰে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লোকো পাইলটসকল শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিছে, ভাগি পৰিছে। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে তেখেতসকলে যেতিয়া ৰেল চলাই যায়, তেতিয়া যিসকল যাত্ৰী থাকে, ৰেল যাত্ৰী, তেখেতসকলৰ জীৱন সংকটত থাকে বুলিও এতিয়া উল্লেখ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকো পাইলটসকলক সাক্ষাৎ কৰি এনেদৰে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হ'ব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকো পাইলটক সাক্ষাৎ কৰা সেই দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে লোকো পাইলটসকলৰ সৈতে বা ৰেল কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে কি কথা বতৰা পাতিছিল, সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले, उनको और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलता। यही है, जबकि हम लोग शायद ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हमें का है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हमारा यूपीएस में जा रहा है पैसा, अभी सिक्योर नहीं है, इसलिए ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा सर। 14 आवर्स तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आज शुरू किया,
14 घंटे आपको चलाना, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स। और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे। 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर आते हैं। हेडक्वार्टर में 16 घंटा रेस्ट। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीनों नहीं सर, सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? 4 महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 साल में घंटे। आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। काट देता है, किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी बहुत मुश्किल रेयर केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपी त्रिपाठी कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है, मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं कर रहे, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए HOR रूल बनाया गया है, HOR मतलब HOER रूल पनिशमेंट के लिए, इतना सब टाइट, लोकोमोटिव पायलट हो। इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी, 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्विलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-5 घंटे लेक्चर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है, मतलब आप इंजन के पार्ट। यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। ये तो बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिन नहीं है। सर विडम्बना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है, और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक। मतलब लॉजिक क्या है इसका? मशीन ओनली ये है कि गाड़ी इंजन टॉयलेट करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे इंजन में इसमें AC नहीं हो, और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग कैसे कर रहा है वो। आप आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे इंजन में। एक सवाल है, इसमें अगर आप 2-3 चीज बदल सकते डिजाइन में, डिजाइन इंप्रूवमेंट कर सकते, तो क्या करते हैं? सबसे पहले ऑल लोग, क्योंकि सर ये जो इंजन है, ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर ये इंडियन इंजन नहीं है, नहीं तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और सर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में AC होता है, ट्रेन में एसी है और सप्लाई हम देते हैं, इंजन छोटा सा AC लगाना है। हाँ सर, लोगों के बाद जितने भी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट AC के हैं। चेंज क्या लाएंगे आप? सर ये मतलब कई बार ऐसा था, यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं, तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को AC नहीं दे रहे हो, टॉयलेट नहीं दे टॉयलेट नहीं दे रहे हो, तो टाइम पर भोजन। सबसे बड़ा रिस्क वही है। यस सर, और सर 4 नाइट ड्यूटी। आप रेलवे के अग्निवीर हो। यस सर, अग्निवीर, रेलवे के मजदूर हो आप। सर यहाँ तक हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकल रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के, फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान